ये नहीं सिखाते, वो नहीं सिखाते. You know, the same question could be asked to another student. Somebody will say कि we have challenges, but in the face of all of this, we have worked and done this. So I'm saying, it's like, हम घर की बुराई कभी नहीं करते, और अगर कोई करता हो तो हम उस, you don't like it, no, you don't like that person. Are you understanding? So the attitude, this is just an example कि criticize नहीं करना, show positivity and all of that. If you take an example up and do this activity, you can do this activity how do you teach it to students? Make them form groups, right? Tell them to choose among, say, politics, among science, among film industry, among sportsmen. Choose somebody whom they think is very successful. Okay, and you can do it. We can do it right now. Let's say all of you. So I ask you to choose one sportsman who you think is very successful. Okay, choose a film star who, or no, let's not take a film. So say badminton. A politician, let's say, who you think is very successful. Indira Gandhi. Okay. So, between all you choose and decide on why you want. Okay. And if you analyze the reasons for the success, okay, is it technical? Is it behavioral? Or is it the attitude? You will find out that technical skills is just 20% of the reason of success. 80% of the success of an institute, if you look at between Sachin Tendulkar and Kamble, सब कहते थे कि काम्बले की टेक्निकल एक्सपर्टीज यूज्ड टू बी वेरी गुड, बहुत अच्छा था. बट व्हाई वाज ही नॉट सक्सेसफुल? It was the attitude, the arrogance that he started projecting, his behavior with his teammates, his colleagues. So those are things which pulled him down. It is the attitude which will 80% result in your success as an individual, for you, for the students, in their career for the rest of their life. And if that is something the students will understand and project, and actually you cannot fake it. Interview mein, there are a lot of ways that interviewers ask those questions to, trick you. Like I could ask you a question कि फर्ज करो आप कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो एंड आपने देखा कि आपके बॉस अब गए डिनर में कहीं बाहर, आपने देखा आपके बॉस बैठे हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, और अगले दिन वही डिनर का बिल उन्होंने कंपनी को प्रेजेंट कर दिया कि मैंने क्लाइंट को डिनर के लिए ले गया था. जस्ट एन एग्जांपल, राइट? सो आई एम सेइंग क्लाइंट को नहीं ले गया था, वो अपनी फैमिली को ले गया था. छोटी बात है, 1000-2000 रुपए की बात होगी, बट उसने गलत बिल सबमिट कर दिया है कंपनी को. अभी उसमें आप क्या करोगे? कोई भी मुझे जवाब दे दे, क्या करोगे आप एम्प्लॉई हो, आपने देखा, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, कोई प्रूफ नहीं है, पर आपको पता है कि पिछले रात जहाँ डिनर पे आपने जब खाया था, देयर इज नो वीडियो रिकॉर्डिंग, देयर इज नो प्रूफ, नथिंग. Then we won't say. What will you do? हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे मन में जो है वो वैल्यू कम हो जाएगी. नहीं, but then this thing, आप कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, राइट? But because we don't have any proof. मैनेजर, अब फर्ज करो मैं मैनेजर हूँ, आप एम्प्लॉई हो, अब मेरे सबऑर्डिनेट हो, आपने मुझे देखा वहाँ पे डिनर पे कि मैं अपनी फैमिली के साथ मैंने फर्जी बिल आज भेजी है, आप आके मुझसे बात करोगे? आपसे एक बार बात कर सकता हूँ कि मैं किसी एम्प्लॉई से बात करूंगा जो वहाँ पर डिनर करने गया था. वो मैं हूँ जो डिनर करने गई थी. तो इनडायरेक्टली बोले आपसे बड़ा जो किया था, और आज हम भी करेंगे. तो मैं आपको क्या कहूँगी कि आप कल के छोकरे आप आके मुझे समझा रहे हो, मैं आपके प्रमोशन रुकवा देती हूँ अभी. ज्यादा मतलब प्रूफ क्या है तुम्हारे पास कि मैंने ऐसे किया? वो तो आपको पता है ना. मैंने आप क्या आके मुझे सीख देने की कोशिश करोगे? क्या करोगे आप इन दिस सिचुएशन? सो आई एम सेइंग, आई एम ट्राइंग टू, व्हाट एम आई ट्राइंग टू फाइंड आउट हियर, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू थिंक. उसने बताया कि मैं चुप रहूंगा, मैं क्यों कुछ बोलूंगा. एक जने ने कहा कि मैं आके ठीक, मतलब हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस इज व्हाट इन द इंटरव्यू वी विल चेक. Okay, and this is just a small example, and there are any number of examples that we will check to check your attitude
एंड ये चीज़ ना बड़ा मुश्किल है सिखाना किसी को कि आई कैन नॉट गिव यू लॉन्ड्री लिस्ट, कोई कुंजी नहीं है मेरे पास कि यू नो ये 100 क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए यू नो सही आंसर प्रिपेयर करके रखना, ऐसा कुछ नहीं होता. मतलब कंपनीज नो हाउ टू गेट द. एंड अगर मैं आपको पूछूं कि आपने यू नो ये पढ़ाई क्यों की, तो 90% बोल देंगे फॉर बेटर ग्रोथ. ग्रोथ का क्या मतलब, पैसे चाहिए, क्या चाहिए, व्हाट इज इट, मतलब खुद डू यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट, डू यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. आई एम सेइंग 80% of the interview is decided on attitude after communication skills. First and foremost is communication skills, without doubt. Please understand that, and whatever you can do from your side to improve the communication skills of your students, you will help them get jobs. Technical is important. You know, it's an underlying, like I'm saying, that example of the 2 books, the content is more or less the same. That is why even in the IIMs you find the differential in salary between people. At the IIMs, when you go for interview, you are not allowed to tell your grade. Companies are not allowed to ask you your grades. तो ये नहीं कि तू टॉपर है इसलिए मैं तुझे जॉब दे रहा हूँ. Many times in the campus interviews, the toppers don't get jobs. 3rd, 4th, 5th day तक toppers को jobs नहीं मिल रहे हैं. Middle order have got the jobs. And it is the attitude which is the single biggest decider of, if you, and this is where, which is the biggest thing, and it's very difficult to teach this. So it is the values that the institution can bring into the children. It is the values of honesty, it is the values of character, of principle. You believe what is right. Tomorrow we'll be discussing this case on business ethics, okay? But that is just one example. I mean, it is the human values, honesty, hard work, learning. She mentioned learning attitude. That is what they're looking at. Somebody is coming with that passion, the fire in the belly. Somebody is coming, यार साहब कोई भी जॉब दे दो, घर के पास होनी चाहिए, मुझे मतलब you know घर का खाना ही अच्छा लगता है. मतलब वहाँ पे उसकी प्रायोरिटीज दिख जाती है. और होता क्या है इंटरव्यूज में, उस टाइम जॉब मिलने के लिए सर कहीं पे भी पोस्ट कर दो, हम चले जाएंगे. ज्वाइन करने के बाद जिंदगी हराम कर देते हैं HR वालों की कि अभी हमें यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, मेरे यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड उधर इतनी दूर है, या मेरा यहाँ पे ये सांभर चावल मुझसे पचता नहीं है. ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. एंड कंपनीज डोंट हैव एनी टॉलरेंस फॉर दैट. So this has to be communicated to students also, saying that if you have a problem, tell honestly. शर्मन जोशी ने कह दिया था ना उसने कि सर बड़ी मुश्किल से आया ये एटीट्यूड. I mean, just look at the guts it requires for him to stand up and say that, right? And companies value that. They really do. ये तो हाँ में हाँ मिलाने वाली उसने जो कहा था ना, वो 90% of them वो हाँ में हाँ मिलाने वाले स्टूडेंट्स मिलते हैं. And if you get people with character, with attitude, with the right positive attitude, good communication skills, that is what we look for. And maybe this one point which you mentioned correctly is this attitude cannot be taught, but I think if it can be imbibed in a person. मतलब आप अपने behavior से, हमारे group के behavior से वो over a period of time वो follow करेगा. For example, एक छोटा सा example मैं देता हूँ. अभी मैंने बिस्किट ठोका और मैंने चाय में पिया. नेक्स्ट मैंने देखा विद्या आई, विद्या ने बिस्किट उठाया, उसने भी ठोका. सो दिस इज हाउ पीपल वॉच यू ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस. सो ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ आवर्स इज बीइंग वॉच्ड इन द इंस्टीट्यूट. आपकी इतनी सी चलता है एटीट्यूड या इतनी सी मिस्टेक मैग्नीफाई होके आपके सामने किसी दिन आ जाती है कि आपने भी तो किया था. जैसे आपने अभी बोला ना कि आपने भी तो किया था. या आप बैड फाउल लैंग्वेज में बात करते हैं, बच्चे भी फाउल लैंग्वेज में बात करेंगे और सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपने भी तो किया था. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एज अ ग्रुप दैट वॉट एवर एक्शन जो भी हम ले रहे हैं वो इसमें, क्योंकि आप बात बोल रहे हो ना, आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है एटीट्यूड का, बिगेस्ट चैलेंज. रीज़न बीइंग जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड को, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है. यस्टरडे वी वर हैविंग अ डिस्कशन विच वाज वेरी वैलिड के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस अ स्टूडेंट.
अब होता क्या है कि हमारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भारी करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अभी होता क्या, वो गया अपने चाचा के पास में गया, अपने मामा के पास में गया, वो बोल देगा अरे तू कहाँ फालतू में कहाँ जाएगा। सिंपल इन योर केस, यू टोल्ड मी दैट गिव मी 4 people. It was an Herculean task for me to find out those 4 people, and as a group also, because seed technology and biotechnology, you ask them, I asked them कि ठीक है आज आपके पास 20 बच्चे हैं, हमारा फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट बैच निकला काफ़ी कम बच्चे थे, इन 20 में से कितने जाने को तैयार होंगे? सबका एक ही जवाब जो आपने बोला, यहाँ ही कहीं जॉब दिला दूँ मैं। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और एक जो गया था जो अच्छी ट्रेनिंग करके भी आया, वो ये बोल रहा है कि सर इतनी दूर वहाँ खाने का जो है वो प्रॉब्लम रहता है। आज वो मजदूरी कर रहा है। ही कुड हैव इजीली डन दैट जॉब अगर वो अच्छा परफॉर्म करके आया था, अच्छा नॉलेज है, टॉपर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जाना नहीं चाहता। उसके पिताजी मजदूरी कर रहे हैं वहाँ पे और डेली के 200 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन एक बच्चे की, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज आप 8,000, आज के 8,000 क्यों देखते हो आप, फ्यूचर के 80,000 क्यों नहीं देखते हो कि वंस यू स्टार्ट दैट 8,000 आपको शुरू के, लेकिन वो इम्बाइब करना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस राइट नाउ। इम्बाइबिंग दैट एटीट्यूड, आज गवर्नमेंट या करप्शन के प्रति जो अट्रैक्शन है, दैट इज़ अगेन वन वेरी बिग थिंग। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारी जो अभी जितने भी कम्युनिटी बैठी है, ये कम्युनिटी का ही अभी गवर्नमेंट जॉब के प्रति बहुत अफेक्शन रहता है, नॉट बिकॉज ऑफ द कंटेंट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब, बट बिकॉज ऑफ द करप्शन एस्पेक्ट ऑफ इट एंड द स्टेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ इट, कि हम कितनी भी बेवकूफ़ी या कितनी भी गलती क्यों ना कर दें, हमसे कोई जॉब कोई छीन नहीं सकता। सो दैट इज़ द रियलिटी। नाउ इन ऑर्डर टू फाइट दैट, आपने जो बोला, पहले तो इंटरनल एटीट्यूड डेवलप करना है। इन ऑर्डर टू रीच इट, जब हमारा एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, देन दोज किड्स विल लर्न फ्रॉम आवर एटीट्यूड। So that is the biggest point. I think we as a group need to think कि वो attitude, it cannot be taught, it can be only imbibed, कि आप जो attitude दिखा रहे हो वो आपको देख के सीख जाएगा, तो फिर वो बहुत सही तरीके से काम करेगा। No, I agree with you. Completely agree. तो ये See, I mean, I don't know. जैसे आपने कहा ना कि सक्सेस स्टोरीज अगर इनको दिखे, बट see, without some sacrifice, कहते हैं ना, लोहा भी तो, it doesn't become steel, right? आग में तब के तभी तभी तो बनता है ना। So without that, it's impossible. You cannot become something superior or better unless you've gone through some hardship and evolved and grown from it. So I mean, I don't know. So it's and this is where probably personal choices start coming in, and value systems come in. I don't know if there's any easy solutions. You're right about them having to see some success stories. Probably a little bit of exposure on. Again the same thing, the intent part of it and the attitude part of it, it cannot be built in just few days. It has to be done from the base and the scratch, and maybe providing that particular environment where I learn from you. If I see my senior or my coach toiling hard, really hard, going against the odds. For example, I give you this example. I am taking specifically this particular video to share this with all the students, my all final year students, what discussion we are having right now. I will share it on Facebook. And the moment they see this, कि आज आपने बोला सांभर चावल नहीं खाना है, then I will show कि देख लो तुम्हारे जो टीचर्स हैं रोज़ सांभर चावल खा रहे हैं वहाँ पे, रोज़ सुबह से शाम तक डील कर रहे हैं. Some of the students who have come over here, they have faced the hardship, but they got the result as well. So similarly, if they see their seniors and colleagues fighting it out and trying to learn something new, I think over a period of time, not sooner, but over a period of time, if we are able to create these things, then it will catch like a fire. But for that, every one of us has to be first we need to learn and we need to showcase that. जहाँ मैंने बोला कि अरे ठीक है तू देख लेना वो 20 क्वेश्चन पढ़ लेना हो जाएगा तेरा काम, जा.
So what we are giving is those 20 questions. Correct. So the moment we gave that 20 questions, and the toughest part is that is the reality, कि आज हमको एक करना पड़ता है, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, लेकिन अगर हम उसके पीछे रीज़न दे के अगर वो चीज़ करने लगे, मे बी पीपल विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि नहीं देख यार टाइम आज बहुत कम है, आइडियली आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल दीज नॉलेज, मैं तेरे को सब सिखाना चाहता हूँ पर मेरे पास आज कोई चॉइस नहीं है, तो आपको अगर लगता है कि आपको सीखना है तो आई एम अवेलेबल टू यू, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट टेक दिस 20 क्वेश्चन. सो द अदर वन, पहले वाले में और सेकंड वाले में बहुत फ़र्क हो जाता है कि आज आपने उसको रीज़न दे के वो 20 क्वेश्चंस दिए कि चलो ये पास होने लायक तो तेरे को मैंने मटेरियल दे दिया, लेकिन आई वांट यू टू लर्न मोर आगे जाके. Probably, I mean, I'm not. यस. No, I'm saying, see, in IIM, the method of teaching is not. So when I was doing engineering, we used to study last 15 days before the exam. पूरे सेमेस्टर तफरी करते थे और लास्ट 15 दिन ठीक है, उस टाइम बुक्स देख लिया, नोट्स देख लिया थोड़ा सा एग्जैक्टली, मतलब वैसे करके मैंने 4 साल निकाले, काफ़ी अच्छे तरीके से ही निकाल दिया है. और आज के मतलब कॉन्सेप्ट्स अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे खास याद नहीं है इंजीनियरिंग का, ठीक है. पर IIM में there is no question, there is just no question that you can study in the last minute. उसको भी नहीं है. डे 1 से इतना रगड़ा मारेंगे ये लोग, सरप्राइज क्विजेस, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, और उनकी ग्रेडिंग ऐसे होती है पूरे, मतलब जो अगर आपको 100 मार्क्स मिल रहे हैं उसमें से 20 मार्क्स आर ऑन क्लास पार्टिसिपेशन, 40 मार्क्स आर ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट्स. एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स में देयर इज नो स्पून फीडिंग. प्रोजेक्ट दिया गया है, पहले तो उसको करने के लिए तुम्हें 10 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे पहले समझने के लिए, तो इट फोर्सेस यू टू स्टडी. और उसमें क्या होता है, team behavior gets inculcated. So, and I will demonstrate this to you tomorrow how important group learning is. I'll show it to you, itself. So that project learning is the best way and the fastest way for students to learn, and you forcing them to learn. So I would recommend jahan tak ho sake make them do projects which are related, and don't tell them the chapters they have to read, go and tell them जाके पढ़ो और फिर वहाँ से फिर प्रोजेक्ट निकालो, and make them, because उस तरीके से वो प्रोजेक्ट भी पढ़ेंगे और कुछ और सीख के उसकी डेवलपमेंट और करके लाएंगे. That is exactly what used to happen. And surprise quizzes मतलब अगर तुम उस दिन क्लास में नहीं हो तो फिर हो चुका, फिर ग्रेड ही गई तुम्हें. And of course IIM is a very competitive environment, so you cannot afford not to, or you have to. I mean, it was just continuous studying. There is no getting out of it. कोई उपाय नहीं है. If you don't want to really fail. So I think there is not like one subject जिसकी concept मुझे अभी तक याद है, because the learning gets so solidly internalized in you, and that is why IIMs are IIMs, and any of the B schools, business schools that you look at, they don't come at a patch, because वो theory teaching करते हैं, the way they teach. So if as far as possible of your curriculum you can drive through projects, I think it will help the students internalize then they're not studying for an interim exam. As much as you can look at doing that. As much as you can do experiential learning. So that will really help students. And what you have already done in terms of, pitting one group against the other, more of that. Incentivizing, whatever ways that you can think of, incentivizing the groups, so that there is that competitive spirit which builds up within them. Otherwise, that sense of complacency will happen across the organization, and then you will have only some 2 or 3 who are just the bright sparks, and they also will get sucked into by the societal influence. One of my cousin sisters, she's studying in Delhi, graduation करी है वहाँ पे. I'm saying the environment there in Delhi University is so different from even Bangalore University students. Bangalore University students are ठीक है, चलता है, like grade bag है, ठीक है, college है, कर देंगे, but Delhi University,
बीकॉम ऑनर्स along with CA ये भी करना है, अरे करना है, इसके बाद मुझे मतलब they have the aspiration level itself there is because of the competition is so high that you know मतलब when you are in that environment you just become like that. You cannot not अच्छा सिर्फ बीकॉम कर रहे हो, you're not doing your CA साथ में मतलब फिर you are less. पर यहाँ पे बैंगलोर में कॉलेजेस में आई हैव येट टू कम अक्रॉस वन स्टूडेंट हु बीकॉम के साथ साथ सीए पढ़ रहा है, सीए कर रहा है. तो ठीक है बीकॉम कर लेंगे, उसके बाद सीए के लिए प्रिपेयर करेंगे, 2 साल और 3 साल और प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद सीए करेंगे, फिर निकलेंगे 27, 28, 29 साल तक पढ़ते रहेंगे, फिर देखेंगे. On these kids in Delhi University are planning by 22 we're going to have to finish our BCom honors from Delhi University with CA, and then I'm going to apply for IIMs or this thing, and then I'm going to go for a career in investment banking. वो तो वहाँ तक उनकी सोच ऑलरेडी वहाँ तक चली गई है, because that is the environment they are in. So the environment makes a big difference. So it maybe if you can even look at getting students to participate in cross university so that they understand कि वो कितने पानी में है और दूसरे बच्चे कहाँ तक है. नहीं वो भी उसको भी थोड़ा केयरफुली हम लोग करने की कोशिश करेंगे. रीज़न मेरे दिमाग में भी आया था, पर उसमें होता क्या है कि कई बार हम लोग फ्लैट गिरे हैं, एकदम फ्लैट ऐसे गिरे हैं कि कैपेबिलिटी फैक्टर बहुत देखना पड़ता है. इनका बेस बहुत वीक है. द मोमेंट आई पिट अगेंस्ट, उनको सपने दिखाना चाहिए कि हाँ, लेकिन हमारा जो ये 3 साल, हाँ, तो हमारा जो 3 साल जाता है बेस सुधारने में ही चला जाता है कि ये 3 साल में इनका जो बेस बिगड़ चुका है पूरी तरह से. तो फिर उस बेस के ऊपर में भी पीजी में आप वो एस्पिरेशन जनरेट कर सकते हो. अभी फ़िलहाल हम लोगों के लिए जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, अब आप जैसे कंप्यूटर साइंस ले लो, तो कंप्यूटर साइंस में एटलीस्ट आई नो व्हाट आर द थिंग्स विच नीड्स टू बी टॉट. Frankly speaking, in all the areas we need to think from a different perspective altogether, and that needs to be done from the team perspective. अकेला मैं अगर सोचूं तो it will not be possible. The respective team members need to get educate themselves first, क्योंकि frankly speaking हमारा exposure भी इतना नहीं रहा है. हमारी टीम का exposure, मेरा तो चलो ठीक है मैं IT इंडस्ट्री में यहाँ काम कर, लेकिन हर कोई अपनी फील्ड में बाहर होके नहीं आया है, तो सिर्फ थियोरेटिकल कुछ नॉलेज है. तो वो एक्सपोजर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट विल हैपन, तो वो परकोलेट होके नीचे आना बहुत ज़रूरी है. सो आईटी में एटलीस्ट आई कैन गाइड देयर, बट वी विल रिक्वायर दैट पीछे से इंटेंट, एटीट्यूड, एवरीथिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन विद इन आवर टीम, सो दैट वी स्ट्रेच इन दैट डायरेक्शन. अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जिस दिन अगर इन्होंने ठान लिया या मैंने ठान लिया कि मेरे को ये करना है, कि आज मेरे को 5 लोग सिलेक्ट कराना है या नहीं कराना है, उसके लिए मैं फिर जी जान लगा दूंगा. सो दैट थिंग नीड्स टू कम फ्रॉम आवर साइड रादर देन द स्टूडेंट साइड. स्टूडेंट्स तो आपको फॉलो करेंगे, स्टूडेंट्स तो आपने बोला कि आपको यहाँ बैठना है, कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग बैठेंगे, और उसकी इम्पोर्टेंस तो शायद उनको पहले भी मिल जाए, मतलब लेने को तो मिल जाए ऐसे वैसे, बट उसके बाद अगर जैसे आप कहते हो कि these other things they don't understand upfront. See, Mary, there is always